you have entered a lively, challenging and warm community. Today, on behalf of management, I privilege to welcome you to this meeting. First of all, with great pleasure, I would like to welcome Reverend Father Gregory, who very kindly agreed to grace this occasion to share his
valuable thought with us. As the principal of Sacred Heart, he always extends his full support for the progress and welfare of us. His true dedication, missionary zeal, and human touch are commendable. Dear Father, you are warmly welcome to this program. Now, I will invite Sister Leah Fatima, our secretary, to give a bouquet to Father Grahari as a token of love. Secondly, I would like to welcome our Secretary Sister Leah Fatima. We are highly fortunate to have her as our Secretary. Sister, you are warmly welcome to this program. Now, I would like to Mrs. Geraldine to give bouquet to our Sister Secretary as a token of love. Now, esteemed parents who kindly accepted our invitation for this meeting, we sincerely appreciate your cooperation and unreserved love for this institution in sparing your time, despite your tight schedule, to honor this invitation. I pray that Almighty God will indeed bless you all in mercy. We are looking forward to working with all the parents and making this year an exciting and successful one. Once again, I extend warm welcome to each one of you. Thank you. God bless you. সকলকে সুপ্রভাত ও আমার শুভেচ্ছা অভিনন্দন কাটাচ্ছেন এবং সুন্দরভাবে উপলব্ধি করছেন। হয়তো আপনারা জানেন যে আজ আমরা এখানে কেন সমবেত হয়েছি। করোনাকালীন দীর্ঘ 2 বছর স্কুল শিক্ষার যে দুরবস্থা ও তার পরবর্তীতে কিভাবে কাটিয়ে উঠে স্বচ্ছন্দে ফেরা যায় তার আলোচনা ও আমাদের বিদ্যালয়ের আদর্শ লক্ষ্য যা আপনাদের সম্মুখ ফুটিয়ে তুলে আলোচনা সভাটিকে সার্বিক রূপ প্রদান করা যায় বা আপনাদের আগমনে আলোচনা সভা ফুলে ফেপে উঠুক এই আশা রাখছি। ধন্যবাদ। होती है और वे माता पिता बच्चों के विकास में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, जो अपने बच्चों की परवरिश एक मित्र, एक शिक्षक और एक मार्गदर्शक बनकर करते हैं। और अगर इनकी आंखों के तारे इनकी आंखों से ओझल हो जाए, नहीं नहीं नहीं, ऐसे ख्याल से भी इनका मन घबराता है। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। जिस तरह एक पौधा खाद, पानी और सूरज की पर्याप्त रोशनी पाकर
एक स्वस्थ हरे भरे पेड़ में विकसित होता है, उसी प्रकार एक बच्चा ज्ञान के मंदिर अर्थात विद्यालय में आकर अपने शिक्षक गणों से शिक्षा प्राप्त करके जीवन के सारे कौशलों में पारंगत होता है। क्यों इस कदर हैरान तो मौसम का है मेहमान तो हो दुनिया सजी तेरे लिए खुद को जरा पहचान तू धूप है जब से बिखर तू है नदी देखो मैं चल कहीं उड़ चल कहीं दिल खुश जहाँ तेरी तो मंजिल है वही। और हमारी यह परंपरा सदा से चली आ रही है, जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में हमेशा से सहायक रही है। किस्मत थी जैसी रूठी, उम्मीद भी थी टूटी, अब सारा आसमां है मेरा। खुलने दो बंद मुट्ठी, कर देंगे सबकी छुट्टी, अब सारा आसमां है मेरा। कुछ ख्वाहिशें हैं जो पूरी तो होने दो, इन रंजिशों को बंदिशों को तोड़ दो। बारी छलांगे, थोड़ी मस्ती करांगे, अभी चल पड़ी मेरी जिंदगी के पहिए घुमा के। बारी छलांगे, थोड़ी मस्ती करांगे, अभी चल पड़ी मेरी जिंदगी के पहिए घुमा के। बारी छलांगे। लेकिन ये क्या, ये कैसा समय आया जिसने पिछले 2 वर्षों में हमारी इस परंपरा को बदल कर रख दिया। कोरोना जैसी महामारी ने न केवल बाजार बल्कि विद्यालयों और विशेष रूप से बच्चों के आचरण को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। अब इन परिस्थितियों में हर माता पिता और शिक्षक को दोहरी जिम्मेदारी निभाना है। तो आइए आज हम प्रण लें कि आप और हम कैसी भी परिस्थिति हो अपने बच्चों के चरित्र निर्माण और उज्जवल भविष्य के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। फलक तू, गरज तू, बरस तू, धूप में छाँव की एहसास तू, सामने ओझले क्यों की दीवार की है घड़ी, तू तेरा अस्त्र है, तू ही तेरा शस्त्र है हर घड़ी। May we give our children the root to grow and the wings to fly. Alone we can do so little, together we can do so much. Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships.
कुछ हम तीनों भाषा से बोले जाएगा, ठीक है। ओके, आप लोग यहाँ पर कितना साल के बाद आ रहे हैं? पेरेंट टीचर का मीटिंग 2 साल को पहले हुआ था। हाँ, ये होना चाहिए, हाँ कि नहीं? हाँ, क्यों होना चाहिए? क्या ना पेरेंट टीचर मीटिंग होता है ताकि आप लोग समझ सकते हैं कि ये सिर्फ स्कूल का काम नहीं है, लेकिन बल्कि आपका काम बहुत है। क्योंकि घर का परिवेश, जब बच्चा पहला स्कूल में आता है, उसका पहले का स्कूल कौन है? घर है। तो इसीलिए घर में जब परवरिश होती है बच्चों का, उसका बाद का परवरिश जब स्कूल में आते हैं, ये दूसरा घर। उसी की तरह हम आज विशेष रीति से देखेंगे बीते हुए कल में क्या था एजुकेशन, आज क्या है और आने वाले में क्या होने वाला है। What was earlier, what is today, and what is going to happen future. So that is what few of the steps we'll see. The first one. कल, आज और जो आने वाला है। समय समय बदल गया है कि नहीं? समय है, बदल गया। यस। डेप्थ ऑफ कल्चर, जो हम लोग आगे में जो था कल्चर, आज क्या हो गया है? उसका सर्वनाश हो गया है। Because what we had, the culture today, it has become quite opposite of what our culture was, and that's why many of our children do not know the culture of the family, the tradition, the values. And you see the dress that they wear, the language they speak, all these things have changed, the depth of culture. बीते हुए कल में बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर थे, उसका समय चर्च, मॉस्क और टेंपल, इसका बहुत ही बड़ा महत्व था, है कि नहीं? ईश्वर का प्रति प्यार, ये सभी बहुत तरह के सभी का उस समय था। नेक्स्ट, आज क्या हो रहा है? ब्रॉडकास्टिंग टीवी सेंटर, बड़ा बड़ा ये है जो था आजकल, इसके लिए हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। हम लोग का कौन हीरो हीरोइन उस समय था? मतलब जो धन्य व्यक्ति, जो ईश्वर को हम लोग मानते हैं, जैसे सेंट्स, रिलीजियस लीडर जो हम लोग के गुरु है, और वहां पर हम लोग का टीचर आदर, इन लोग को हम लोग उस समय बहुत ही हम लोग का हीरो मानते थे। इसीलिए गुरुदेवो भव इस समय, है कि नहीं? उन लोग के लिए हमें बहुत ही महत्व देते थे। आज क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल प्लेयर, फिल्म स्टार, उन लोग का हीरो हीरोइन यही है ना? सहमत हैं आप लोग? यस। नेक्स्ट,
उस समय क्या होता था, जब ट्रेडिशन सुबह से उठने से प्रार्थना में दिन शुरू होता था, उस समय गिरजा मत जाते थे और सुबह का प्रार्थना होता था, शाम का प्रार्थना होता था, घर में एक जन बैठकर प्रार्थना होता था। आजकल क्या होता है, यंग वन जब उठते क्या होता है, उनका कानों में म्यूजिक, उसके बाद प्लग योर ईयर्स विद आईपॉड एंड मोबाइल। सुबह दिन का क्या शुरुआत है, मोबाइल से। कितना जन सहमत है मोबाइल से दिन शुरू होता है? हाँ, क्योंकि आप लोग पहले उठ के व्हाट्सएप में क्या है कि नहीं, कौन मैसेज भेजा, कौन कॉल किया, और आपसे सीख रहे हैं, आपका बच्चे लोग भी वही सीख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। रिक्रिएशन एक होता था। उस समय क्या होता था, घर में शाम का समय इकट्ठा होकर परिवार में खाना एक साथ होता था, बातचीत एक साथ होता था, है कि नहीं? एक साथ खावा, एक साथ कथा बोला, এটা হচ্ছিল। आजकल क्या हो रहा है, सब कुछ बातचीत नहीं हो रहा है, सब कुछ टीवी का सामने हो रहा है कि नहीं? अभी देखिए, घर में 4-5 जन का मोबाइल है, पांचों मोबाइल से व्यस्त है, कोई बातचीत नहीं। रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाना नहीं आया, क्या करेंगे, तुरंत मोबाइल उठा के। सो आवर होल थिंग्स हैव चेंज्ड ओवर द इयर्स, आवर होल सिस्टम हैज चेंज्ड। नेक्स्ट। उस समय हर परिवार एकता में काम कर रहे थे, एकता, परिवार में एकता। उस समय बहुत ही पैसा नहीं था, है ना? जितना पैसा आता है उतना क्या होता है, उतना ही झगड़ा शुरू होता है, ये होता है, वो बात बहुत कुछ, क्योंकि पैसा वो सबके लिए खराब चीज से। जितना अमीर होते जाते हैं उतना हम लोग बहुत ही अंदर से बहुत खोखला हो जाते हैं। मनी इज नॉट एवरीथिंग, पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा यू कैन बाय अ बेड, लेकिन नींद नहीं कर सकते, है कि नहीं? सो मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ, एंड दैट इज व्हाई द होल फोकस इज टुडे द वैल्यूज इज इंडिपेंडेंट टाइम टेबल। जो एकता जो थे, आजकल बच्चा का हम लोग बोलते हैं उसको एक रूम बनाना है अलग से, उसके लिए रूम में चाहिए। उस समय कहाँ रूम था, सभी एक साथ में सोते थे, देयर वाज नो टेंशन, देयर वाज नो प्रॉब्लम। नाउ एवरीथिंग वी आर थिंकिंग, हम लोग सोचते हैं अगर इसको ऐसा नहीं देगा तो नहीं होगा। और आप लोग बोलेंगे ये सब कुछ किसके लिए है, हमारा बच्चे लोगों के लिए है, भविष्य क्या है उन्हीं लोगों के लिए है। लेकिन बच्चों को अपना भविष्य बनाइए, डोंट मेक मनी फॉर देयर फ्यूचर, लेट हिम अर्न बाय हिमसेल्फ एंड मेक मनी, यू डोंट मेक। अपना बच्चों को अपना भविष्य बनाना। नेक्स्ट। उस समय क्या होता था, हम लोग का प्रायोरिटी परिवार का जितना भी फैमिली इवेंट्स है वो होता था, ओकेजन्स ऑफ सेलिब्रेशन। क्या होता था, सभी परिवार में एकता का जो सेलिब्रेशन था एकता में होता था दैट टाइम। टुडे हम लोग कहाँ जाते हैं, दीघा जाएंगे, बिग बाजार जाएंगे, सिनेमा देखने जाएंगे, हम लोग का वही हो गया, अलग हो गया। देखिए वहां से कहां से हम लोग का परिवार का जो ये था अभी कहां बदल गया है। कभी छुट्टी, चलो हम लोग उधर घूमने जाते हैं। अभी आजकल हम लोग देखते हैं बच्चों लोगों का छुट्टी एक 10 दिन, काली पूजा ये पूजा है, लेकिन उसका बाद उन लोग का प्रोग्राम और एक हफ्ता का बढ़ गया। बच्चा का स्कूल में नागा हो रहा वो नहीं सोच रहा है, उन लोग का वो छुट्टी है ना, वो बड़ी बात है। इसलिए हम देखते हैं ना कितना जन अब घूरते गए ना, घूरते गेले होवे ना, किंतु जे नियम कानून दिया गया है उसका अनुसरण करना है। दैट इज द डिसिप्लिन दैट वी हैव टू गिव इनटू द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन। नेक्स्ट। उस समय प्यार, फेथफुलनेस, एक दूसरे से और रेस्पेक्ट, ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण था अर्लियर दिन में। आजकल क्या है, सब कुछ एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। प्यार है तो लोग स्वामी स्त्री के बीच में जो फेथफुलनेस, ट्रस्ट ये होना चाहिए वो है, और हम लोग एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं।
हम लोग कितना भी पढ़े लिखे, आजकल क्या पहला पे एक जन काम करता था ना, है कि नहीं? उसका बाद अभी बीवी भी काम करते हैं, तो बोलते हैं हम किसी से कम नहीं, आप कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ। सो इस तरह की भावना से अगर आता है, दोनों में ये मेल मिलाप होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट सम हैव टू मेक ए सैक्रिफाइस। बच्चों का अगर सही परवरिश होना चाहिए तो कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक सर्टेन सैक्रिफाइस। नेक्स्ट, पर्सन्स वर इंपॉर्टेंट। कौन इंपॉर्टेंट थे उस समय? पर्सन्स, मनुष्य। आजकल क्या इंपॉर्टेंट है? आजकल क्या हम लोग मुख्य हमारा जीवन में क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? नेक्स्ट, आजकल क्या हम लोग का महत्वपूर्ण है? थिंग्स, मनी, पैसा, ये दोनों के लिए हम लोग बहुत ही महत्व दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं? थिंग्स मतलब क्या है? वस्तु, और क्या है? पैसा, इसके लिए महत्व दे रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट नॉट ओनली पर्सन्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन थिंग्स। उसके लिए हम लोग प्यार करना मनुष्य के लिए। इसीलिए अगर हम लोग अपना बच्चे को नहीं प्यार करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, जब पास हो जाएगा तुमको एक अच्छा मोबाइल दे दूंगा। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? वी आर टेलिंग इफ यू पास आई विल गिव यू मोबाइल। अगर आप मोबाइल अभी नहीं देंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। सो डोंट मेक एम्प्टी प्रॉमिसेस, एंड दैट्स व्हाई द वैल्यू सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कल हम लोग तो जानते हैं कि गहरी रिश्ता परमानेंट। आजकल हम लोग देख रहे हैं कितना डिवोर्स हो रहा है, कितना मन में तनाव है। देयर इज अ डिफरेंसेस अमंग द फैमिली मेंबर्स, फैमिलीज आर ब्रोकन। लेकिन अर्लियर डेज देयर वाज नो समथिंग कॉल्ड डिवोर्स। बहुत ही पुराने दिन में हम लोग कभी नहीं सुने कि वहां पर डिवोर्स का ये था। बहुत ही सभी प्यार से जीवन बिताते थे। हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण, हम लोग उस समय प्यार के लिए हम लोग महत्व देते थे। आजकल तनाव आ जाता है तो हेट्रेड, लव एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन हेट्रेड। एक दूसरे को हम लोग देख नहीं पाते हैं, इस तरह का महत्व हो जाता है। पीछे नियम में मतलब बीइंग, मतलब जो थे वो है। आजकल क्या है? हैविंग, कितना मेरा पास है। और छोटा भी 20 इंच का टीवी था, अभी क्या होना चाहिए? 26 इंच होना चाहिए, है ना? छोटा घर था, अभी क्या होना चाहिए? बड़ा घर होना चाहिए। हम लोग यही सोच रहे हैं, जो जितना छोटा था उतना में आराम था, जितना बड़ा घर आ गया, जितना बड़ा ज्यादा पैसा हो गया, the things have become quite different. कल हम लोग slow and steady wins the race, we used to say. Today fast and crash. आप लोग देखें ना, बच्चे लोग बाइक चलाते हैं, जितना 2 तेज चलाते हैं वही फास्ट है ना। आजकल दैट इज द वर्ड। इवन इन कलकत्ता हम लोग देखते हैं, माँ फ्लाईओवर में उन लोग का कंपटीशन चलता है, कौन जितना तेज चलाता है। और बहुत जन लड़का को वो लोग डेथ भी हो गया। बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर थिंकिंग, वेयर देयर वाज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, टुडे दे ऑल थिंक एज फास्ट। लाइफ हैज बिकम क्वाइट फास्ट आल्सो इन आवर थिंकिंग। या अर्लियर दिन क्या था? जॉइंट फैमिली बहुत ही बड़ा था ना, है क्या ना? जॉइंट फैमिली आज भी है, लेकिन उतना जो पहले में था, आज उतना परिवार में हम लोग जानते हैं कि एक एक परिवार में 6, 7, 8, 9, 10 बच्चे थे। आजकल कितना है? कितना है? वजन चले में आजकल ये क्या? दैट इज व्हाट सेज न्यूक्लियस फैमिली, ओनली वन। ओ आजकल कौन इतना बढ़ गया? हाँ, बिकॉज ये ईश्वर का दान है, देना किसका है? ईश्वर का देना है। सो
एक अगर बच्चा रहता है उसमें क्या हो जाता है, उसका साथ खेल कूदने के लिए कोई नहीं है, बच्चा स्वार्थ हो जाता है, बिकम्स वेरी सेल्फिश। आप लोग देते हैं वो अपना पास ही रखेगा, दूसरों को देने के लिए वो नहीं सीखा है कि नहीं? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली वन सन वन डॉटर, एटलीस्ट यू शुड हैव मिनिमम 2 चिल्ड्रन सो दैट दे कैन प्ले। अगर बच्चा छोटा में किसका साथ खेलेगा? माँ बाप का साथ। बच्चा के साथ खेलेगा ना, नहीं तो आप लोग खिलौना देंगे, खिलौने के साथ खेलो, कितना खिलौने के साथ खेलेगा? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट रिलेशनशिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा का जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जैसे बोला जाता है ना, फर्स्ट 5 years इन अ लाइफ ऑफ अ चाइल्ड इज लाइक कैमरा लेंस। कैमरा में आप जो भी फोटो खींचते हैं वो क्या करता है? ले लेता है ना। Whatever you click, it takes. So whatever the child sees, he picks up. So the first 5 years are very very important in the child's life. इसीलिए पहला 5 साल बच्चों का सही परवरिश करेंगे, बच्चा सही हो जाएगा। First 5 years you neglect, the children's future also will be like that. So very very important to understand this. Old was gold, हम लोग बोल कहते हैं ना, पुराना था क्या था? सोना था। आज क्या है? यंग इज बोल्ड, मतलब आपके बच्चे आपको प्रश्न करेंगे, आप बोलेंगे तुम कहां जा रही हो, आपको क्यों बोलना है ना? आप क्यों जानना चाहती है? टुडे इज यंग, ओल्ड वॉज गोल्ड। पुराने नियम में कोई भी ऐसा नहीं बोलते थे, बट टुडे दे हैव बिकम वेरी बोल्ड। स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ही हम लोग महत्व देते थे उस समय। प्रार्थना, ईश्वर, ऐसे भी बहुत ही महत्व था पुराना नियम में। आज कल हम लोग क्या देखते हैं? मेटीरियलिज्म, डिस्को, होटल, कहाँ जाना, दिस इज व्हाट वी आर, आवर लाइफ इज। यंग का देखिए आजकल छुट्टी में अगर शनिवार रविवार में है तो लोग कहाँ कौन होटल में जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, कहाँ घूमने जाएंगे। दिस इज व्हाट द फोकस इज, एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो एस्पेक्ट ऑफ गॉड। इसीलिए मैं देखा बहुत जन को, मैंने भी बच्चों को पूछा, बहुत जन आजकल ईश्वर पर भी विश्वास नहीं है, ईश्वर को भी उन लोग मानते नहीं है, ईश्वर है कि नहीं। So this is the focus of today's young reality. So we have to wake up, parents, and that is why one of the best thing is जब बच्चे उठते हैं कम से कम 2 मिनट वहां बैठकर ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए सिखाइए। ये दिन दिया है इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं ताकि इस दिन अच्छा से जाए। शाम का टाइम में सोने का पहले बैठकर 2 मिनट उसको यही कीजिए कि जो हुआ आज इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, जो नहीं अच्छा हुआ उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। प्रार्थना करता हूं 2 मिनट, ये सिखाइए अपने बच्चों को। जब बच्चा इस परिवेश में बढ़ता है तभी उसको समझ में आता है कि थोड़ा तो ईश्वर के लिए हम लोग को समय देना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग हर एक व्यक्ति का यही मकसद रहता है, ये दुनिया शाश्वत नहीं है। जितना भी पैसा हो, बाड़ी हो, गंगड़ा हो, जो भी हमारा पास है ये शाश्वत नहीं है, क्षणिक है। लेकिन हम लोग स्वर्ग का जाने के लिए, उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं। एंड देन टुडे हम लोग चाहते हैं कि इमीडिएट रिवॉर्ड, इसीलिए आजकल हम लोग बच्चा का तुरंत हम लोग देना चाहते हैं। इट्स नॉट इमीडिएट रिवॉर्ड। वी हैव गॉट आवर होल लाइफ हियर ऑन अर्थ इज ए जर्नी। हम लोग का जो ये इस दुनिया में हम लोग, दिस इज द जर्नी एंड देयर आर अप्स एंड डाउन, प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज, बट व्हेन आई लिव ए गुड लाइफ आई गेट हेवनली रिवॉर्ड। इफ आई डोंट लिव ए गुड लाइफ आई विल बी going to hell or whatever punishment that I will be getting. आप लोग जब आपका कठिनाई परिश्रम था, that time what you were doing, saving, है कि नहीं? आजकल आप लोग सोचते हैं ना, बजट करते हैं ना, आपका घर का कितना बजट क्या होता है,
इतना रखना है, फीस इतना देना है, घर का भाड़ा इतना देना है, इलेक्ट्रिसिटी है, एक बजट करते हैं ना, तब उसके लिए आप लोग क्या करना है? सेविंग। आजकल सेविंग हो रहा है, स्पेंडिंग, बिग बाजार इधर उधर, बच्चों लोग और लोग बड़ा में वो चाहिए मुझे ब्रांडेड। आजकल क्या हो गया, जितना ब्रांडेड पहनता है वो सोचता है कि बाप बहुत है ब्रांडेड। और हम लोग कभी ब्रांडेड देखा भी नहीं था। आजकल बच्चे लोग जितना ब्रांडेड देखकर पहनते हैं, माँ बाप उतना दिन कभी ब्रांडेड देखा ही नहीं था। सो टुडे द चिल्ड्रन हैव बिकम क्वाइट ऑपोजिट। और माँ बाप भी यही सोचते हैं, अरे मेरे पास तो पैसा है, ये किसके लिए है? लेकिन हम लोग क्या सिखा रहे हैं बच्चों के लिए? जब ब्रांडेड खरीदना चाहिए, तुम जब कमाओगे तब खरीदो, अभी मैं ब्रांडेड नहीं दे सकता। यू हैव टू टीच, दिस इज व्हाट आई हैव, आई कैन गिव। अगर आपके पास 10 रुपया है, आप 8 रुपया दे सकते हैं, 15 रुपये नहीं दे सकते। सो व्हाट यू हैव, टीच देम राइटली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच द वैल्यूज ऑफ द चिल्ड्रन। और हम लोग का कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू ऑल्सो हैव ट्रेडिशन, कल्चर, इसको सिखाना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आवर कल्चर। बट टुडे वेस्टर्न कल्चर आ गया है। हम लोग का भारत देश में वेस्टर्न कल्चर इमिटेट कर रहे हैं हम लोग, और इसीलिए उन लोग का चलना फिरना ड्रेस करना सभी वेस्टर्न हो गया। और बहुत बार आजकल बच्चों लोगों को हम लोग कहाँ भेजते हैं पढ़ाई के लिए? बाहर देश में भेजते हैं ना। और बाहर देश में आके वो आके पूरा भारत देश ही सोचता है, वो भूल गया कि वो भारत देश का है। सो वेस्टर्न कल्चर हैज crept in into our system as well. So that is also we have to become aware of it. और पुराना दिन में हम लोग बहुत ही फॉर्मल थे, है ना? कोई भी कुछ पहनने से कोई देखा नहीं, कोई ये नहीं, there is no problem, anything that could have been very formal, but today become very casual. बच्चा को देखिए उधर क्या कर रहा है, become very casual, anything now it's not like that. Now बच्चे लोगों को आप लोग स्कूल में भेजते हैं, you should have proper uniform, properly shoe polished, proper haircut. आजकल haircut देखने से डर आ जाते हैं हमको, पूरा नकल करते हैं। किसका नकल? क्रिकेटर्स, फुटबॉल। कल देखा कोहली का पूरा इधर है नहीं, बोला मैं भी कोहली हो जाता हूँ। तो स्कूल में पूरा देखिए अगर कितना बच्चे लोग ऐसा हेयर कट में आते हैं। मैं यही बोलता हूँ, तुम जो है वही रहना है। तुम अगर उसको काटने से कोहली नहीं बन जाता है कि नहीं? सो इसीलिए माँ बाप का भी जिम्मेदार होता है। तो इसीलिए आजकल नापित के पास जाता है, वो बोलेगा कौन सा स्कूल में आता है तुम? ये स्कूल, तब उसको एक काटेगा, क्योंकि वो स्कूल में वो अलाव है। लेकिन ये मैं इसका बहुत ही खिलाफ हूं। तुम जो है बाबू वही रहो, तुम दूसरा बनने की कोशिश मत करो। ये तुम्हारा बाल काटने से तुम दूसरा नहीं बन जाता है। तो बहुत बार पेरेंट है वो करते हैं, अभी 10 दिन छुट्टी है ना, उस छुट्टी में मैं उसको काट देता हूं। अरे वो 10 दिन में क्या बढ़ जाएगा? तो आप लोग जब बच्चा इस तरह के आता है, तुरंत भेजिए उसको वापस, जाओ फिर से काट के आओ। यू हैव टू टीच राइट वैल्यूज। अगर आप लोग नहीं बोलते हैं, वो सोचेगा माँ बाप भी मेरा साथ है, मैं जो करता हूँ ठीक है। दैट इज वन। इवन सपोज चीटिंग इन द एग्जामिनेशन, नकल करता है, आजकल बहुत जन को पकड़ा जाता है। माँ बाप उसको घर में जाके उसको शासन करना ये सही नहीं है। ये कैसा सीखा तुम? कहां से सीखा? जो सही है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू टॉक टू योर चिल्ड्रन। इसीलिए आप लोग बहुत जन, जैसे कितने जन बिजनेस करते हैं यहाँ पर, बिजनेस 10 बजे 11 बजे 12 बजे के बाद आते हैं घर में। तो आप लोग कभी भी बच्चा के साथ बात करने का मौका ही नहीं मिलता है। मंडे से सैटरडे आप लोग नहीं हैं, बात कब करेंगे? माँ कितना बात करेगी? कम से कम अगर नहीं है तो हफ्ता में एक दिन जाके आप लोग एक साथ बैठ के बातचीत कीजिए, बच्चा का परवरिश सोचिए, स्कूल में कहाँ हो रहा है, तुम लोग को क्या कष्ट है, टीचर लोग कैसा पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को पूछना है।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द रोल ऑफ द पेरेंट। ये सिर्फ नहीं स्कूल में क्या हो रहा है, लेकिन बच्चा, आप माँ बाप, आप लोगों को सोचना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सब दोस्त स्कूल में देने से नहीं होगा, आपका जितना कर्तव्य है आपको करना है। इसका बाद में स्कूल का काम स्कूल कर रहे हैं, इसका बाद घर में जाने के बाद एवरी डे यू शुड बी टॉकिंग टू योर चिल्ड्रन व्हाट हैपेंड टुडे इन द स्कूल। स्कूल में आज के की होइछे, की पढ़ानो होइछे, की होमवर्क देওয়া হয়েছে। यू हैव टू टॉक टू देम चिल्ड्रन। डिड यू हैव एनी फाइट, কারো সাথে তোমার ঝগড়া হলো? एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉक टू द चिल्ड्रन। पहले हम लोग जब बातचीत करने के लिए हम लोग बहुत ही सोचकर बात करते थे, है ना? आजकल बच्चे लोग सोचते हैं, बोल देते हैं। इरैशनल इन देयर थिंकिंग, इरैशनल, सेंसेशनल। आजकल हम लोग देखते हैं छोटे छोटे बच्चे लोग, ये 2 साल में बच्चों लोगों का जीवन बदल गया, क्योंकि उन लोगों का सब कुछ वो मोबाइल था। लेकिन आप लोगों को सोचना है, उस समय कोई दूसरा राह ही नहीं था, बच्चों लोगों को मोबाइल देना पड़ा। और स्मार्टफोन, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में जो छोटा मोबाइल से काम नहीं चलता, माँ बाप को जोर जबरदस्ती मोबाइल खरीदना पड़ा। जिसका पास पैसा नहीं है, कर्जा करके उसको मोबाइल खरीद के देना पड़ा। लेकिन हम लोग उसका हाथ में क्या दे रहे हैं, हम लोग को इतना समझ में नहीं आता, क्योंकि ये स्मार्टफोन यूज होते हुए उन लोग ही बहुत ही स्मार्ट बन रहे हैं। आप लोग जो इसका जानकारी नहीं है, आपका बच्चा आपको सिखा देगा, है कि नहीं? तो माँ बाप बोलेगा अच्छा बाबू इसको थोड़ा करो, तो वो तुरंत कर देगा, बहुत खुश, आप भी बहुत खुश। लेकिन ये खुशी में उसका बीच में क्या हो रहा है आपको मालूम नहीं। That is why today it's very important, the social media बहुत जनों को नष्ट कर रहा है। आजकल देखिए कहीं पर लड़का लड़की जाकर फोटो खींच के उसको तो तुरंत फॉरवर्ड कर सकता है ना, 10 जन, 15 जन, 20 जन, 100 जन को फॉरवर्ड हो गया। आजकल हम लोग देखते हैं छोटे छोटे टिकटॉक बच्चे लोग खड़ा होकर सब तरह के फोटो खींचने देगा, तुरंत कर दिया। All these are crazy things they are doing. Young children, मतलब पता नहीं हमको आजकल क्या हो रहा है, उन लोग के मन में सोच में क्या है, ये इसके लिए आप लोग को जागना चाहिए। सोशल मीडिया इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रूइनिंग। एक बच्चा था जो घर में कुछ नहीं चाहिए उसको, खाना पीना सोना नहीं, लेकिन क्या चाहिए, इसका एडिक्शन हो गया। जैसे नशा हो जाता है ना, कोई पीने का नशा, कोई सिगरेट का नशा, कोई आजकल बच्चों लोगों का मोबाइल का नशा। मैं सिर्फ बच्चों लोगों का नहीं, कुछ माँ बाप भी है, उन लोगों भी नशा हो गया। जब फ्री टाइम में सब समय हम लोग वही मोबाइल ही देखते हैं। सो दिस इज नॉट द थिंग। सो द क्वेश्चन इज व्हाई, व्हेन, व्हाट, हाउ, ये प्रश्न हम लोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब, क्यों, कितना, कितना मोबाइल देना है, और सब समय घर का अंदर जो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, अपने रूम में अगर रहेगा तो दरवाजा खुला रखिए, कंप्यूटर में वो क्या कर रहा है, मोबाइल में क्या देख रहा है, ओपन वो डोर, नेवर क्लोज डोर्स। अगर क्लोज डोर में क्या हो रहा है, आप उसका नुकसान कर रहे हैं। बच्चाদের দরজা বন্ধ করে ভিতরে রাখবেন না, ओपन, एंड दैट इज व्हाट You have to have trust on your sons and daughter. उसको समझाना है, देखो तुम्हारे पास मोबाइल है, लेकिन क्या देख रहे हो नहीं देख रहे हो, मैं तुमसे विश्वास करता हूं। अगर इसका बाद में कोई भी एक समय तुम इसका ये कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है, then it is I am going to take away the mobile। अगर आप बोलेंगे टेक अवे, आजकल उसके लिए आप लोग ब्लैकमेल कर लेंगे, मैं वो छत जाके खुद जाऊंगा। सुनिए आप, ये क्लास 5 का लड़का बोल रहा है माँ को, आप ले लेगा तो मैं खुद दूंगा। सो व्हाट विल यू डू? सो आपको ब्लैकमेल करेंगे। सो दीज आर द वेरियस थिंग्स यू हैज टू टॉक टू योर चिल्ड्रन। बच्चे लोग के लिए समझाना है। और आजकल का बच्चे लोग
the social media has become so much engrossed in them, become part of it. बच्चे लोग चुपके चुपके स्कूल में मोबाइल लाते हैं. मोबाइल स्कूल में हम लोग बोले हैं नो मोबाइल इन द स्कूल. आप लोग भी देखना चाहिए कि आपके बच्चे लोग मोबाइल स्कूल में नहीं लाएंगे. अगर आपका पास है मोबाइल तब क्या होगा, मन में आएगा मेरा पास है. अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम. रहने से आपको एक मन में आएगा ना, थोड़ा देखूंगा क्या है. So this is what very important to emphasize. And video games, another thing that they are attached to video games. इतना दरकार नहीं है बच्चों को वीडियो गेम. मैदान में लेके जाइए. Let them play, let them some exercise. Do some exercise in the garden, मैदान, take them park or Sunday anywhere is very important for parents. कम से कम बच्चा को आधा घंटा या 45 मिनट हर दिन खेलना चाहिए. कितना जन माँ बाप ले जाते हैं बच्चे को, हाथ उठाइए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 जन ना. बच्चा भाले भालो बाहर के लिए खराब हो जाए. इधर ही था. What are you making? अरे let him fall. गिरने दो, उठने दो. What is there? Everybody has fallen. Everybody has become. That is important. We don't make them statues. We don't create them like Albert Einstein. We are not creating that. Let them grow naturally. जब उसका जो आजकल अगर बच्चे लोग पढ़ाई में अच्छा नहीं है, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन से स्पोर्ट्समैन कोटा से उसको नौकरी हो जाता है. So you have to think what your child is good at. किसमें वो अच्छा है, उसमें उसको दिलचस्पी है तो उसको encourage कीजिए. That's very important to think that what I want to make our child. Next. मैं बोला था इसीलिए गुरु देव भवा. Those days they used to respect teachers. Today there is no respect for teachers also. TV, computer, devo bhava. And as a result आजकल पेरेंट्स टीचर लोग कुछ बोलेंगे, बच्चों लोग वो टीचर को ऐसा देखेंगे. आजकल see what has become. Mindset has changed. The same children earlier days used to touch the feet of their elders. आजकल ये घुटना में आ गया, नीचे और नहीं जाता है. Nowadays only this. Things have changed. Now they feel we can't touch feet. This is the system that we are all inculcating. Next. Our communication is wireless. हम लोग को जो आजकल देखिए कम्युनिकेशन, अब आजकल बहुत जन मोबाइल आ गया, कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया. See, these are all wireless. Our phones are cordless. आजकल cordless फोन मिलता है कि नहीं? Next. Our business is cashless. Nowadays become all net banking, online. You can pay. There is already become is. Our cooking is become fatless. आजकल तेल ये वो खाना नहीं खाना है, fatless. Everybody is saying concentration of their health. Our food also is become fatless. Our food is oilless. Our youth are jobless. कितना भी पढ़े हैं आजकल हम लोग जानते हैं ना, जितना भी पढ़े हैं लेकिन जॉब नहीं मिलता है तो क्या फायदा. बहुत जन है ऐसा है, MA, B.Ed, MSc, all those who पढ़े हैं, both and we are not jobs also. Our religion is creedless. We are just following for the sake of following. Our faith is godless. हम लोग का विश्वास में ईश्वर नहीं है. Our churches are spiritless. Our conduct is worthless. और इसीलिए आजकल हम लोग का जो व्यवहार होता है
See, any values are within us, then those values I know, respect. Say, when we come to children wishing each other good morning, good afternoon, good evening, good night, all these children when they are small, parents teach them. You have to wish them. कोई आता है बाहर से, uncle, auntie, hello auntie, good morning. These kind of things we have to teach them. These are the culture which is very, very important for them. And we have to become humble. Namrata, this is very important. Not become very proud that I am the father of so and so, so I become proud. No. जितना नम्रता रहता है उसमें उतना उन लोग ऊंचा उठाते हैं. So this is very important to understand. Our religion is loveless. Today, just for the sake of doing, we are doing. Our attitude is careless. आजकल का वही बोल रहा हूँ ना, हम लोग का जो व्यवहार होता है एकदम careless attitude. इसीलिए बच्चे स्कूल में आएंगे, जैसे भी आएंगे ठीक है. और आजकल बच्चे लोग बहुत देरी से सोते हैं और लेट से उठते हैं और स्कूल में देरी से पहुंचते हैं, है कि नहीं? और माँ बाप लोग, आप लोग क्या कर रहे हैं? बच्चा अगर देरी से 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जैसे आज बच्चा बोल रहा था, तुम क्यों लेट में आया? मैं 2 बजे तक पढ़ रहा था, इसलिए मैं देरी से उठा. See, this is not a thing. You know what time the school starts, what time. So planning. आप लोग में इतना जन है, कितना जन आप लोग अपने बच्चों के लिए एक टाइम टेबल बनाए हैं? हाथ उठाइए. Because there is no time table. टाइम टेबल क्यों बनाना है? It gives you guidance. 6 बजे उठना है, 6:30 बजे ब्रेकफास्ट, 7 बजे स्कूल जाना है, 7 से 1:30 बजे स्कूल में, 1:30 से घर में आएगा 2 बजे, 2 बजे खाना खाता है, 3 बजे खेलने जाता है, 4:30 बजे 5 बजे वापस आता है, नहा धो के 6 बजे पढ़ने बैठता है. टाइम टेबल कीजिए, आप मत कीजिए, अपने बच्चों को वहां पर बैठा के टाइम टेबल करवाइए. बाद में ये नहीं बोलना है कि ये आपने टाइम टेबल बनाया, तुम खुद बनाओ. बना के उधर रखने से नहीं होगा, उसको फॉलो करना है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज फॉर एवरीडे स्कूल और एक दोज डेज ऑफ हॉलीडे. हॉलीडे में थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है, पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ता है कि नहीं? जितना डेली पढ़ता है उससे ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि देयर इज मोर टाइम, गिविंग मोर टाइम फॉर रिक्रिएशन, all those kind of thing, planning. All those who do planning and especially class 10, those बच्चे, कितना जन class 10 का परीक्षा दे रहे हैं इस बार? कितना माँ बाप हैं इधर class 10 का परीक्षा दे रहे हैं? नहीं, okay. तो especially when you are children now class 9, focus on them because next year board examination. So that importance you have to create in the beginning itself. पहले से उन लोगों को ये देना चाहिए कि बोर्ड का परीक्षा में किस तरह तैयारी करना है. नेक्स्ट. And our education is also, we think, valueless because now certain things the teachers always do their best. कोई भी स्कूल में टीचर अपने जितना करना चाहते हैं करते हैं, लेकिन टीचर लोग बच्चों को पढ़ना नहीं चाह सकते हैं. They can only take the horse to drink, यानी ये घोड़ा को पानी तक ले जा सकते हैं उनका करते हुए. पानी पीना किसका करते हुए? बच्चा का. So studying is his. Teacher can't write examination for him or for her. Teachers do their role, but you have to do your role to help your children. That's very important. Our arguments are baseless. Okay. Our commitment is aimless. हम लोग जो भी हम लोग करते हैं उसमें एक कमिटमेंट जो होता है ना वो नहीं रहता है आजकल. मतलब इसीलिए मैं बोलता हूँ जो करना है, I have to go and do this. Commit to that. आज करेगा ठीक है, कल करूँगा. No, आज का work today. Today's work do today. एंड स्पेशली आज नहीं किया, आजकल जैसे किसी का बर्थडे हुआ, बच्चा वहां चला गया बर्थडे में, हाउ डू यू मेक अप दैट टाइम टेबल ऑफ यस्टरडे बिकॉज आई वेंट टू बर्थडे, मेक अप टुडे. दैट कमिटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
ओके, और होल लाइफ इज मीनिंगलेस। अगर हम लोग का ये होता है तो हम लोग का पूरा जीवन कोई महत्व न रहता है। इसीलिए आजकल हम लोग कुछ विषय में ध्यान हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परिवार, आप लोगों का पहला जो परिवार है वो बच्चों का शिक्षा देने का कर्तव्य फर्स्ट इज अ फैमिली। ये फैमिली डज नॉट गिव द राइट वैल्यूज, अगर परिवार में सही तरह के मार्गदर्शन नहीं देते हैं तो बच्चा बिगड़ जाता है। सो दैट्स व्हाई देयर आर सम चिल्ड्रन हु आर वेरी मच पैम्पर्ड। पैम्पर्ड का मतलब क्या है? पैम्पर्ड मैटर्स अंडरस्टैंड। बच्चों को जो भी वो करता है आप लोग बोलेंगे ठीक है, क्या सही क्या गलत हम लोग ये नहीं करते हैं। बच्चे जब छोटे रहते हैं, अगर एक बच्चा दूसरों को मारा तो आप देख के चुप रहेंगे तो बच्चा क्या समझता है? मैं जो कर रहा हूं सही, तो आपको बोलना पड़ेगा बाबू नहीं, इसको मारना नहीं है, ये गलत है। सो चाइल्ड गेट्स द मैसेज। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन टू टीच यू एज पेरेंट व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। अगर बच्चा आज एक पेंसिल लेके गया घर में, माँ बाप देखते ही ये पेंसिल, ये पूछते हैं बाबू ये किसका पेंसिल है? तो मैं स्कूल से लेके आया। तो क्या कर्तव्य है कि माँ बाप का? बाबू ये पेंसिल नहीं लाना चाहिए, ये मेरा नहीं तुम्हारा नहीं है, तुमको चाहिए तो मैं अच्छा पेंसिल खरीद के दूंगा, इसको कल लेके जाना। और टीचर को what the message child gets, this is not mine, I should not. So these are the small thing। नहीं तो अगर माँ कुछ नहीं बोला तो बच्चा दूसरे दिन कुछ दूसरा पाएगा, क्योंकि माँ ने कुछ नहीं बोला। So the small things that is very important to teach the right values, and that is why you parents many times if anything that is coming we always support our children। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक पेरेंट आया था बोला तो अपना बच्चा क्लास 9 में है, वो जो नकल करते पकड़ा गया। हम बोला तो वो पकड़ा गया तो शायद वो दूसरा कोई पड़ा हुआ था होगा, वो नीचे से उठाया होगा। तो क्या कर रहे हैं, जो गलत है उसको साबित करना चाहते हैं, तो जो किया वो सही। दिस इज नॉट द थिंग। वो सोच सकता है कि ठीक है फादर ये गलती अभी इस बार किया है, अगर इस आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं घर में जाके उसको समझाऊंगा, बस बात खत्म। लेकिन डोंट प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन। जो गलत है गलत है। इफ यू एनकरेज योर चिल्ड्रन देन द चाइल्ड ऑल्सो गेट्स द मैसेज। क्योंकि जब किया वो जाके घर में गलत ही बोलता है माँ बाप को। वो कभी नहीं बोला कि मैं पकड़ा गया इसलिए मुझे भेजा गया, ये नहीं बोलेगा, भाई ये तो नीचे पड़ा था मैंने उठाया था, ये सब गलत। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द स्कूल, गो टू द प्रिंसिपल, मीट द प्रिंसिपल, टीचर विल बी कॉल्ड एंड थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर। डोंट सिंपली प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन। हम लोग चाहते हैं कि हर टीचर हर प्रिंसिपल आपका बच्चे हम लोग का बच्चे हैं, क्योंकि दिस स्कूल इज सेकेंड होम। हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग बहुत बार स्ट्रिक्ट होते हैं इसीलिए उसका भविष्य सही हो। বাচ্চাদের ভবিষ্যতের জন্য আমরা ভালো করে অনেক बार আমরা রেগে যাই, एक बारी एक दो थप्पड़ दी। आप लोग जब पढ़ते थे कितना मारपीट, हम लोग भी बहुत खाए मार। आजकल एक मार होने से बस हो गया, माँ बाप आते हैं ओ क्यों मेरा बच्चा को मारा। अरे जब गलती करते एक दो थप्पड़ मारने से बच्चा का ये नहीं होगा, एटलीस्ट ही विल हैव सम फियर। आजकल वो डर भी नहीं है बच्चा का, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट द थिंग। इफ समथिंग इज डन रॉन्ग इट हैज टू बी गिवन पनिशमेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब बच्चा सीखता है कि अगला बार मुझे इसको नहीं करना है। सो गेट दैट चिल्ड्रन डूइंग, एंड व्हेन द चिल्ड्रन कम होम और प्लीज चेक देयर बुक्स एंड से व्हाट वाज द डन टुडे, क्या किया है आज। इट इज यू हु हैव टू टेक आउट। समटाइम पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड। आजकल हम लोग सोचते हैं मुझे उतना समझ में नहीं आता, और ट्यूशन में जाते हैं बच्चों लोग, ट्यूशन टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन उन लोग क्या पढ़ा रहे नहीं कर रहे हैं। आपको भी जिम्मेदारी है माँ बाप को। यू हाउ टू एजुकेशन इज नॉट द ओनली ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स एंड द टीचर्स, इट इज मेंट फॉर एवरी पेरेंट ऑल्सो, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। So that is one of the very important things in the line of the education. Secondly, we are also have to understand
each parents are responsible for everything that happens at home. In the same way as whatever happens in the school becomes responsible. It is both responsibility of the school, responsibility of the parents to work together. एक साथ में मिलकर काम करना है. ये हम लोगों का काम नहीं, ये तुम लोग का काम ये नहीं है. We are all working together to reach the destiny, and that's why today it's our duty and responsibility that we need to work out. And also today some of the punishment that we are giving in the classroom situations are not because we want to punish the children, but we want to help them to go in the right perspective. And with that, there is another very important Excuse me, sorry to interrupt you, Father. The parents are requested to stay until the program finishes. There are some information to give to you all. सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग प्रोग्राम के एंड तक रहें. आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर जानकारी देनी है. সবাই পেরেন্টসকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনারা প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার অবধি থাকবেন. আপনাদেরকে কিছু ইনফরমেশন দেওয়ার আছে. Does your child goes out to play every day for at least 1 hour? हाथ ऊपर कीजिए. 1 घंटा बच्चा पढ़ने खेलने जाता है बाहर. यहाँ पर कोई नहीं है. Okay, next. Wait. Do you sit and talk with your child other than he studies for at least 30 minutes on a regular basis? कितना जन? 30 मिनट बच्चा का साथ हम लोग पढ़ाई के बारे में दूसरा चीज लेकर हम लोग बैठ के बातचीत करते हैं. ओके. डू यू हैव 1 meal with your child every day? बच्चा का साथ में कम से कम एक खाना हम लोग एक साथ करते हैं. कितना जन है? रात का खाना? हाँ? ओके, ठीक है. Does your child spend most of the time apart from school in tuitions? आपका बच्चा क्या does your child spend most of his time apart from school in tuition? कितना समय बच्चा ट्यूशन में बिताता है? इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, 8 बजे 9 बजे वापस आता है. कितना जन है? बहुत जन है कि बहुत बार बच्चा इस ट्यूशन से उस ट्यूशन, उस ट्यूशन से उस ट्यूशन, और पर्सनल स्टडी के लिए टाइम नहीं है. अपने पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है. उसके बाद सोचेगा 11 बजे पढ़ने बैठेगा. होगा ऐसा? Next. Where are we heading towards? We are definitely making sure that children should do well in the academics so that they can have a flourishing career. And why not? It's important and well. हम लोग सब सोचते हैं कि अपने बच्चा सही तरह परवरिश हो, सही पढ़ाई करे और आगे बढ़े. यही हम लोग चाहते हैं. Next. The $1,000,000 question: at the cost of what? By taking away their childhood and by letting them play. अगर हम लोग बच्चों को खेलने नहीं देते हैं, उनका जो छोटे बच्चे को जब खेल कूद में नहीं देते हैं, that we are taking away their bit. By making them a machine gets turned to 6 o'clock in the morning and gets turned up at 11 p.m. or sometimes even more late during the midnight. हम लोग क्या करते हैं? 6:30 बजे बच्चा उठता है, तब 11 बजे तक उसको मतलब एक का एक बच्चे लोग को टाइम टेबल है. उसका बाद इवन मिडनाइट में बच्चे लोग तक हम लोग करते हैं. सो दैट इज अनदर क्वेश्चन. बाय मेकिंग देम रोबोट्स हु ओनली अंडरस्टैंड वर्क बट नॉट इमोशंस एज दे हार्डली हैव टाइम फॉर इंटरेक्शन नाइदर विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली. और बच्चों का अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ खेल कूदने के समय नहीं है. लेकिन आजकल हम लोग जानते हैं एक जैसे क्लास 10, क्लास 12 आजकल उन लोगों को प्रोजेक्ट करना है. प्रोजेक्ट एक से एक प्रोजेक्ट, टाइम नहीं है. और उसके बाद प्रोजेक्ट समय पर नहीं दे पाते हैं, स्कूल नहीं आते हैं, बैठकर घर में करते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ दीज फैक्टर्स आर दिस इज अवेलेबल टुडे.
increase in sexual deviation, only source of pleasure as there has been room for developing the hobby. आजकल हम लोग देखते हैं, आजकल जो कोई एजुकेशन हम लोग बहुत बार it is a positive and negatives also. Nowadays because of this mobile, even in class 6, class 7 we can see these differences. बच्चे लोग जो गंदा गंदा गाली या सीखते हैं और आप लोग को ताजुब हो जाता है ये कहाँ से आ रहा है। और जो बच्चे ये सभी आजकल का जो सेक्सुअल कॉनिटेशन लिखते हैं, अगर आपको पूछेंगे उसका मतलब जानते हो? नहीं जानता है। कहां से सीखा? उसका दोस्त ने बोला। See, these are all things are corrupting the mind of the children, and that's why when they think these kind of thing, be careful with whom he is going, with which girl. आजकल 5-6 में उन लोगों का ऑलरेडी मन में बहुत कुछ तरह का ये चल रहा है। It's very very important caution we have to do. पोर्नोग्राफिक और अदर एडिक्शन, आजकल हम लोग देखते हैं मोबाइल में क्या देखता है। These are very important you to parents to see that which interests. आजकल जैसे क्लास 8 में आ जाता है, 9 में, 10, 11, that is the period of adolescence. He is always have curiosity to know. देखना चाहता है क्या है, that curiosity in their mind. That's why you have to be very very careful in which mind he is working on. And poor marital and social adjustment, difficulty in sharing, it can easily learn through playing. That's why also we have to understand sometimes if there is family rift between husband wife, that can have an effect on the children. अगर पति पत्नी का बीच में झगड़ा होता है, बच्चों के सामने झगड़ा करते हैं, ये बच्चा के ऊपर असर हो जाता है। इसीलिए वो क्लास में आता है, चुपचाप बैठता है, काम नहीं करता है, क्योंकि घर में जो तनाव है उसका मन में भी असर पड़ जाता है। So that is why you have to be careful. Never fight in front of your child. Go to the room and fight both of you. बच्चा के सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए। Next. Finally, it leads to the decrease in overall psychological well-being, disappointment, frustration, medical intervention, legal implication. और बच्चा लोग को मतलब किसी में दिलचस्पी नहीं है, उसका बाद उसका मेडिकल में बहुत तरह के फ्रस्ट्रेशन आ जाता है बच्चों को, उसके बाद बहुत तरह के रोग आ जाते हैं। then you have to take to the hospital. Lot of implication we have got when it goes emotional disbalance and psychological disbalance. Therefore, it is important to understand the normal needs of the children so that we can contribute to our overall development instead of side academic development. That's why we always say all round development of a child. मतलब क्या है? Studies, academic, social, emotional, psychological, all this development only takes place when the child grows in that environment. जब बच्चे उस माहौल में अगर बढ़ता है तब उसका emotional balance भी सही रहता है. So this is what we have to try our best to give, and that's why a healthy body, healthy mind will make a child also very healthy. Any behavior with occurs of moderation is normal. If sometimes your child does not want to study, अगर आप पूछेंगे मुझे पढ़ाई में अच्छा नहीं होता है, तब उसमें कोई प्रॉब्लम है. अगर बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है तो कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है. उसको देखना है कि क्यों पढ़ना नहीं चाहता है. दूसरा, बिहेव्स क्रैंकी, उसका अचानक उसका बिहेवियर में बदलाव आ गया. पहला ऐसा नहीं था, उसका बिहेवियर में बदलाव आ गया. डज नॉट परफॉर्म वेल, आज पहले जो पास होता था वो सब्जेक्ट में अभी फेल हो रहा है. एंड ऑल्सो गेट्स ऑब्जर्वेशंस. So these are all few of the things that you have to do. So when do we need to worry? कब हम लोगों को सबको डर का समय आता है? If any behavior is too much in frequency, मतलब उसका जो behavior pattern है बहुत घन हो रहा है, तब हम लोगों को सतर्क होना चाहिए. Too much intensity जो कर रहा है और something unusual and persistent जो कर रहा है वो सही नहीं हो रहा है, तो हम लोग का उस समय थोड़ा कोशिश करना चाहिए. नेक्स्ट, if your child exhibits any of the following behavior most of the time, that is does not want to study, misbehaves, fails to perform in academic, observation, nature of observation is important. ये हम लोग को भी देखना है. जब वो पढ़ना नहीं चाहता है, जब एक दूसरे से सही तरह बिहेव नहीं करता है,
और एकेडमिक्स में फेल होता है, तभी हम लोगों का सावधान होना चाहिए। पेरेंट्स काइंडली नोट द पॉइंट। पेरेंट्स प्लीज रिमेंबर दैट योर सन इज ए ग्रोइंग प्रोसेस। मतलब वो छोटा से क्या होता है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। Hence, buckle up yourself for host of problem. There will be issues regarding your son's academic and behavior problem. Please don't panic. Be patient and alert. बहुत बार ऐसा हो जाने से हम लोग डर जाते हैं, अभी क्या हो गया, मेरा बच्चा कैसा हो गया। डरना नहीं है, सतर्क होना चाहिए। Be alert. To begin with, please don't forget that your son is coming to school for overall development. Overall development does not mean only academics. It means that needs to have a physical, emotional development as well. A special emphasis has to be made in including good value system. जब हमारे घरों में, हमारा परिवार में सही value system, प्यार, एकता, क्षमा, these are the value system. If it is there, बच्चा का जीवन में भी सही होता है। ये गुण हम लोगों का जीवन में होना चाहिए। So that is what we are all striving for. Okay, finally, just to conclude all that, आप लोगों के पास कोई सवाल है, कोई प्रश्न है जो पूछना चाहते हैं? कोई प्रश्न नहीं है। सब समझ में आया? Yes or no? सब समझ में आया जो मैं बोला? अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा समझ में आया। लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ, ये पेरेंट टीचर्स मीटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग भी अपने बच्चों को कुछ परवरिश में सही नहीं हो रहा है, कुछ बात आकर प्रिंसिपल से मिलकर कभी भी ये करते, इसमें डरना नहीं है कोई। मतलब अगर टीचर ने, अगर प्रिंसिपल ने बच्चा को कॉल किया, बहुत बार बहुत पेरेंट आते नहीं हैं, पेरेंट आते ही नहीं हैं। ये सोचते हैं कि बच्चा के बारे में बोला इतना, लेकिन सी इफ देयर इज अ कॉल फ्रॉम द प्रिंसिपल, देयर इज समथिंग सीरियस, इसीलिए उसको बुलाया गया है। यू शुड मेक दैट टाइम, 10 मिनट 15 मिनट के निकाल के समय में आना चाहिए। मीट, फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम, स्पीक टू योर चाइल्ड, देन प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड आउट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सो एज वेरी क्लियरली said, parents play the vital role in the lives of the children from the small. Once they come to the school, it is the school which takes the responsibility to inculcate the right values in the lives of the children. And the teachers do their best. When they do their best, you should do the rest. And that is what, when we work together, we can unitedly help your children to grow. So wish you all the best. Thank you very much.